Good morning, students. How are you? Hope you are doing well and everything is going fine. And welcome to the online classes. We are going through it, and you all are doing your work. I believe that. And there are some students still they are not sending their work. Please send your work because we are again. I am telling we are putting your attendance and internal marks and everything is going according based on this only. Okay, so we are continuing our chapter, that is chapter number 4 in the Kingdom of Fools. Before we go through that, I want to make some kind of announcement and information I want to give. There will be a class test. There will be a class test on Sunday, on 19th of this Sunday, right? This Sunday there will be the class test, and chapter number 2, The Adventure of Toto. The Adventures of Toto will be the syllabus for the test, and marks, 10 marks. Timing, 1 hour time, 8 o'clock to 9 o'clock, 8 a.m. Morning 8 a.m. to morning 9 a.m. Okay, so there will be the timings like this. Okay, so you will be, what I'll be sending you the questions before 8 to both the group, in the class group as well as in the query group. So I'll be sending the questions in both the group, and you have to download that thing, write the question and answers, write the answers itself. If you are not able to write in that 1 hour, if you are not able to write the questions, then write the answers. There will be 10 marks questions, so there will be maybe 5 questions. Okay, so you have to complete that in 1 hour. Take picture and send back to the group. Now, when you write that, you have to mention your name, class with section and subject. Okay, this is your note, this is your paper, name, class, subject, and write your answers in each and every page so that no one could copy it. Okay, हर पेज पे आपको अपना नाम, क्लास और सब्जेक्ट लिखना है ताकि दूसरा कोई इसको कॉपी ना कर पाए, और उसकी फोटो खींचनी है, इन सब की फोटो खींचनी है, पीडीएफ बनाना है और वापस से हमारे क्वेरी ग्रुप में भेजना है। क्लास टेस्ट है आपका संडे को, इस संडे को 19 को, इस संडे को जो कि परसों है, परसों कल है, ठीक है, तो 19 को आपका टेस्ट होगा संडे को, ठीक है। चैप्टर 2 का द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, एक ही चैप्टर दे रहा हूं मैं आपको। 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी 10 मार्क्स का होगा पेपर आपका। 1 घंटे का टाइम होगा आपके पास, सुबह 8 बजे से 9 बजे तक के बीच में, ठीक है। आपको 8 बजे से पहले आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चन लिखने हैं जल्दी से और उनको वापस से ग्रुप में पोस्ट करना है। तो 9 बजे तक आपको क्या करना है, उसको लिख के कंप्लीट करके पोस्ट करके भेजना है। जिसका 9 बजे से पहले आएगा वही माना जाएगा, अदरवाइज नो, ठीक है। तो ये आपको सेंड इट ऐसे बनाना है आपको फॉर्मेट, जैसे आप क्लास में जैसे बनाते थे, नेम, क्लास, सब्जेक्ट और बाकी सब, और हर पेज पे आपको लिखना है ताकि कोई दूसरा उसको कॉपी ना कर पाए, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल थिंग्स, ठीक है। तो क्लास टेस्ट के बारे में ना बोले, जो कि कल है आपको संडे को, ठीक है। So let's go back to our chapter, in the kingdom of fools. हम जो कंटिन्यू कर रहे थे वो चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। इन द किंगडम ऑफ फूल्स में हम जानते हैं, हम लोग अभी इस जगह पहुंच गए हैं कि जहां पर जो राजा है, he has ordered, he ordered to kill the merchant, but because he is too thin, they are not unable to do that, and so the king has ऑर्डर्ड अगेन टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट, किसी और को ढूंढने के लिए किंग ने ऑर्डर दिया, और उसके सर्वेंट जो है, किंग के सर्वेंट जो है वो कहाँ, वो जाते हैं मार्केट में किसी को ढूंढने की, कोई फैट इंसान या जो फिट हो जाए उसको मिल जाए। और एट लास्ट दे रीच टू द पॉइंट कि जहाँ पे उनको एक बंदा दिखता है। कौन है वो? ही इज द डिसाइपल, है ना, जो चेला था, जो कि अभी बहुत मोटा हो चुका है, तो वो उसको मिल जाता है और उसके बाद उनको पकड़ के ले आते हैं। चेला पूछता है, गिड़गिड़ाता है कि मैंने क्या गलती करी, मैंने कोई गलती नहीं करी, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं तो एक डिसाइपल हूँ। बट नो, पीपल आर लाइक, जो गार्ड है या जो हमारे किंग के जो सर्वेंट हैं उन्होंने मना कर दिया, नहीं हमें नहीं पता, हमें तो कहा गया है कि आपको लेके जाए। अब वो लेके जाते हैं, उसके बाद वो प्रार्थना करता है पूरे रास्ते भर की, गुरु से, अपने गुरु से या अपने मास्टर से वो प्रार्थना करता है कि ये गुरु मुझे बचा ले, कुछ भी कर, है ना। और गुरु वहां से देख लेता है कि ही हैज दैट पावर ऑफ विजन की पावर है, तो वो वहां से कौन है, गुरु आता है अपने चेले को बचाने के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ओपन योर बुक्स। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, ओके। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper.
Then he went to the king and addressed him, "O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple?" Of course, the guru, no doubt about it. "Why do you ask? Then put me to the stake first. Put my disciple to death after me." अब क्या होता है, जो गुरु है वो आता है, पहले चेले से मिलता है, चेले से मिलने के बाद वो चेले को डांटता है पहले तो, है ना, क्योंकि अगर वो उस दिन उसके साथ चला जाता तो ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। मगर कोई बात नहीं, वो डांटता है और उसके बाद उसके कान में कुछ कहता है, गुरु कहता है उसके कान में, और उसके बाद वो लोग बात करते हैं। उसके बाद जो गुरु है वो राजा के पास जाता है और राजा के पास जाके गुरु कहता है, "ओ वाइजेस्ट किंग", मतलब वो कहता है सारे राजाओं में आप बुद्धिमान है ना, और वो कहता है कि जो सबसे महान है, ऐसे थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलने के बाद बोलता है कि आप मुझे बताएं कि गुरु सबसे बड़ा होता है या चेला सबसे बड़ा होता है, गुरु बड़ा होता है या चेला, ऐसे वो राजा से पूछता है। तो राजा आंसर करता है, "ऑफ कोर्स गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क", कि सीधी सी बात है, गुरु ही बड़ा होता है, ये तुमने क्यों पूछा, है ना, ऐसे राजा आंसर करता है। "देन पुट मी द स्टेक फर्स्ट, पुट माय डिसाइपल टू द डेथ आफ्टर मी", तो गुरु कहता है तो एक काम करो, अगर गुरु आपके साथ गुरु बड़ा होता है ना, तो पहले मुझे उस जगह पे मारो, उसके बाद मेरे डिसाइपल को मारना, पहले मुझे मार दो, उसके बाद डिसाइपल को मारना। नो भाई, ऐसा क्या हुआ? When the disciples heard this, he understood and began to clamor, "Me first, you brought me here first, put me to death first, not him." The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, "Why do you want to die?" "We chose him because we needed a fat man for the stake." "You shouldn't ask me such question. Put me to death first," replied the guru. "Why, there's some mystery here. As a wise man, you must make me understand." अब क्या हुआ? जैसे गुरु ने कहा कि आप मुझे पहले मारो और मेरे चेले को बाद में मारना, तो चेला ये समझ गया कि ये तो कुछ नाटक कर रहा है, तो चेला भी चिल्लाने लगता है कि नहीं, आप मुझे लेके आए थे, पहले मुझे मारो, ठीक है, पहले मुझे मारो। और फिर उसके बाद इन दोनों में झगड़ा हो गया, किनमें? गुरु में और चेले में झगड़ा हो गया, पहले मुझे मारो, पहले मुझे मारो। अब ये सुनकर किंग बहुत पजल हो गया। किंग ऐसे पूछ रहे क्या हुआ यहाँ पे, राइट? द किंग वाज पजल, मतलब उसकी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो किंग इज लाइक कि ऐसा क्या हुआ, और वो पूछता है कि हम तो इसको इसलिए लाए थे क्योंकि ये मोटा है और इसको मार सके, बिकॉज ही इज फैट इनफ, बट आप क्यों मरना चाहते हो? तो गुरु कहता है कि आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप तो मुझे पहले मारो फिर उसको मार देना। बट देन द किंग सेज, आप एक वाइज इंसान है, आप एक गुरु है, तो आप मुझे समझाएं इसमें इसके पीछे क्या रहस्य है, ऐसा क्यों चाहते हैं आप, पहले क्यों मरना चाहते हैं करके वो पूछता है। क्या कहता है? "Will you promise to put me to death if I tell you?" asked the guru. The king gave his solemn word. The guru took him aside out of the servants' earshot and whispered to him, "Do you know why we want to die right now? The two of us, we have been all over the world, but we have never found a city like this, or a king like you. The stake is the stake of God of justice. It's new, it has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first, remember." अब क्या होता है कि राजा पूछता है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या रहस्य है, ठीक है? तो गुरु बोलता है कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप अपनी प्रॉमिस करते हैं कि आप मुझे मार देंगे इससे पहले, ठीक है? और वो राजा को साइड में लेके जाता है, उनके कान में बोलता है कि हम दोनों जो है पूरी दुनिया घूम चुके हैं, ठीक है, हमने कभी भी ऐसा एक राज्य नहीं देखा, और ना ही ऐसा कोई बुद्धिमान किंग, आपके जैसे कोई बुद्धिमान राजा भी नहीं देखा, ठीक है? तो इसमें ऐसा है कि अगर हम लोग, और ये जो स्टेक मतलब जो प्लेस बनाया था ना मारने के लिए, तो वो जो प्लेस है वो भी नया है और उससे पहले कोई क्रिमिनल गया नहीं। अगर जो उसमें पहले जाएगा वो क्या होगा, वो उस राज्य का राजा बन के दोबारा जन्म लेगा, है ना, और जो दूसरा मरेगा वो उस राज्य का मंत्री बन के जन्म लेगा। क्या मतलब है? अगर पहले जो मरेगा वो तो राजा बन के जन्म लेगा दोबारा, और दूसरा जो मरेगा वो मंत्री बन के जन्म लेगा। इसलिए आपको मुझे पहले मारना होगा, फिर मेरे चेले को मारना होगा। तो हम जो है ये साधु बन के थक गए हैं, हम जो सन्यासी हैं वो थक चुके हैं, कम से कम हम थोड़ा नेक्स्ट जन्म में तो एंजॉय करेंगे कि हम यहाँ के राजा और मंत्री बन जाए, ठीक है? इसलिए
पहले मुझे मारिए और फिर उसको डिसाइड करो। अब आपने क्योंकि मुझे अब प्रॉमिस किया था, अब जल्दी करो। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. It's not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stage ourselves and we will be reborn as king and minister again. Holy men do not lie. He said the minister, and the minister agreed. अब क्या हुआ, राजा बिल्कुल डीप थॉट में चले गया, मतलब बहुत ज्यादा सोचने लग गया वो कि ये तो बात सही कह रहा है, मतलब क्योंकि ये तो सन्यासी लोग ये तो झूठ बोलते नहीं है, ठीक है। अब वो बहुत ज्यादा सोच रहा है। उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो डेथ का जो एग्जीक्यूशन था उसको एक दिन पोस्टपोन कर दो, कल करेंगे हम। और अब राजा और मिनिस्टर जो मिनिस्टर थे वो लोग बैठ के ऐसे सोच रहे हैं कि हम अपना राज्य दूसरों को कैसे दे दें, है ना। अगर हमने गुरु और चेले को मार दिया तो वो अगले जन्म में तो किंग और मिनिस्टर बन जाएंगे, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, अगले जन्म में भी हमें ही बनना है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं कि हम खुद चले जाते हैं, मैं एज ए राजा पहले नहीं जाऊंगा, फिर मेरे बाद तुम मिनिस्टर जितने भी हो तो आ जाना, तो पहले हम लोग मर जाएंगे, फिर हम अगले जन्म में भी हम ही लोग राजा और मंत्री रहेंगे यहाँ पे। मतलब हम अभी भी इनको बनने नहीं दे सकते, हमारे किंगडम हम दूसरों को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो होली मैन होते हैं, जो ये लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, वो झूठ नहीं बोलते, ठीक है। तो ऐसा राजा ने मिनिस्टर से कहा और मिनिस्टर भी मान गए, हाँ ठीक है पहले हम मर जाएंगे। Now, so he told the executioner, "We'll send the criminal tonight. When the first man comes, you put him to death first, then do the same to the second. Those are my orders. Don't make any mistake." That night, the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand, with loyal servants, were taken to the stake and promptly executed. और फिर उसके बाद जो एग्जीक्यूशनर है, मतलब जो मारने वाला है ना, जो भी वहां पे मारने वाला था, उसको ऑर्डर दिए कि आज रात को ही हम क्या करेंगे, हम 2 लोगों को भेजेंगे, ठीक है। पहले जो आएगा उसको पहले मार देना, फिर दूसरे नंबर पे जो आएगा उसको भी मार देना, कोई क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है, कोई क्वेश्चन मत पूछना, तुम तो सिर्फ मार देना, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये मेरे ऑर्डर से ऐसे मार दो। फिर उसके बाद वो लोग, उन्होंने क्या किया कि गुरु और चेले को जो है रिलीज कर दिया वहां से, मतलब छोड़ दिया उनको, और जो सर्वेंट है उनको कहा कि हमें लेके जाओ, तुम एक पे जो जगह है हमें लेके जाओ। और वैसा ही हुआ, सेम वहां पे ऐसे ही हुआ, उसको लेके गए और उस एक्सप्लेनेशन में उन दोनों को, किसको, राजा को और उसके मिनिस्टर को मार दिया। फिर क्या हुआ, when the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and the ministers. The city was in confusion. अब क्या हुआ, जब दूसरे दिन जब वो बॉडी को, जो वहां के परिंदों को, जो चिड़िया और जो कौवे हैं उनको खिलाने के लिए बॉडी को फेंका गया, क्योंकि वो तो क्रिमिनल थे, राइट। तो जब उनके लिए फेंका गया तो वहां के लोग बाग जो है बहुत ज्यादा डर गए। क्यों? उन्होंने क्या देखा, उनका राजा और उनका मिनिस्टर वहां पे पड़ा है, डेड बॉडीज ऑफ किंग एंड मिनिस्टर वर देयर। तो लोग बाग बहुत ज्यादा डर गए और बिल्कुल कंफ्यूजन से छा गया वहां पे। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up them with as they were preparing to leave the town unnoticed. और फिर क्या हुआ, अब पूरी रात भर तो उन्होंने, दूसरे दिन पूरा उन्होंने क्या शौक बनाया, क्योंकि उनका राजा और मिनिस्टर मर चुका था। और फिर उसके बाद वो लोग सोचने लगे, अब हमारा राज्य कौन चलाएगा, अब हमारा किंगडम कौन चलाएगा, ऐसा करके सोचने लगे। तभी किसी ने नोटिस किया कि जो गुरु और चेले थे वो लोग बच के निकलने की कोशिश कर रहे थे, है ना, वहां से जाने वाले थे। We people need a king and a minister, said someone. Others agreed. They begged the guru and the disciple to the king and their minister. It didn't take many arguments to pursue the disciple, but it took longer to pursue the guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. अब क्या हुआ, फिर किसी ने, जो वहां के लोग थे, प्रजा ने कहा कि हमें एक राजा और एक मिनिस्टर की जरूरत है जो हमें राज्य कर सके। और इस बात पे सब लोग एग्री भी कर लिए। उन्होंने कहा आप दोनों, कौन कौन, गुरु और जो चेला है, उनसे कहा कि आप हमारा राजा बन जाइए, आप हमारे मिनिस्टर बन जाइए। अब चेले को बनाना तो बहुत आसान था, ज्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब गुरु को बनाने में थोड़ा टाइम लगा। बट देन थोड़ा उनको बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने वो एग्री कर लिया, क्या, उस राज्य को राज्य करने के लिए एग्री कर लिया है। मगर
उन्होंने कहा कि हम एक कंडीशन पे करेंगे कि हम जो पुराने जितने भी लॉ है, पुराने जितने भी रूल्स हैं, वो सबको हम बदलेंगे, तभी हम राज्य करेंगे। ठीक है, तो वो भी मान गए। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड बी अगेन द नाइट एंड द डे वुड बी अगेन द डे एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डबल, इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। और उसके बाद गुरु ने और चेले ने मिलकर उन्होंने क्या किया, सबसे पहला क्या चेंज किया कि जो रात को था वो रात वापस से बना दिया, जो दिन था उसको वापस से दिन बना दिया, और कोई भी चीज अब 1 रुपए में नहीं मिलती थी उन सबको वैसा ही कर दिया जैसे दूसरे राज्यों में भी होता है। ठीक है, उसको सेम कर दिया, मतलब जो पुराने जितने भी जो स्कूल्स में उन इडियट्स ने बनाए थे, जो रूल्स बनाए थे, वो सब चेंज करके उन्होंने उसको नॉर्मल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ऐसे किंग और मिनिस्टर जो थे उन्होंने सोचा अगले जन्म में भी हम राजा और बन जाएंगे, इसलिए पहले हम मर जाते, तो उन्होंने अपने लाइफ को वहां पे ऐसे सैक्रिफाइस कर दिया। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स क्या कह रहे हैं, देखो, टॉक अबाउट इट के अंदर, व्हाट आर द टू स्ट्रेंजर थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। दो चीजें ऐसी क्या थी जो गुरु और डिसाइपल ने किंगडम में क्या पाया, दो चीजें आपको पता है, एक तो जो रात दिन का प्रॉब्लम था और दूसरा हर चीज वहां पे सेम प्राइस 1 रुपए में मिल रही थी, राइट, वो है व्हाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इज इट अ गुड आइडिया। क्यों डिसाइपल वहां पर रुक गया, क्यों डिसाइपल वापस से उसी जगह रुक गया, यानी किंगडम में रुक गया था, क्या वो अच्छा आइडिया था या नहीं। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट एंड गिव द रीजन फॉर देयर ट्रायल। हर एक उस व्यक्ति का नाम हमें बताना है जिनके ऊपर केस चला, मुकदमा चला था कोर्ट में। कौन कौन था, स्टार्ट किसे, मर्चेंट से स्टार्ट हुआ, मर्चेंट जो बिजनेसमैन है उसको बुलाया गया, फिर उसके बाद दीवार बनाने वाले को बुलाया गया, फिर उसके बाद जो डांसर लेडी थी उसको बुलाया गया, फिर गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया, और उसके बाद दोबारा से मर्चेंट की बारी आई। ठीक है, और उसके बाद डिसाइपल आए, तो पूरा सर्किल ऐसे घूमता है, और उनकी क्या क्या प्रॉब्लम थी वो सब हमें यहाँ बताना है। फोर्थ क्वेश्चन, who is the real culprit according to the king, why does he escape punishment। और किंग के हिसाब से असली कल्प्रिट यानी असली गुनहगार कौन था, ठीक है, मगर उसको पनिशमेंट क्यों नहीं दिया, वो कैसे बच गया पनिशमेंट से, वो हमें पता है। किंग के हिसाब से कौन, वो मर्चेंट एक कल्प्रिट का असली गुनहगार वो था, मगर उसको क्यों वो एक्सिक्यूट नहीं किया, क्यों उसको पनिशमेंट नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतला था। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम व्हेन डज द डिसाइपल रिमेंबर देम। और गुरु ने ऐसा क्या विजडम, मतलब एक क्या बात बोली थी डिसाइपल से और उसको क्या याद आया। विजडम मतलब बुद्धि की बात बताई थी ना, एक समझदारी की बात बताई थी गुरु ने कि भाई यहाँ से चलो, ये लोग दे आर फूल्स, दे वी डोंट नो व्हाट दे विल डू, है ना, तो ऐसा कहा था। और ये कब डिसाइपल को कब याद आया ये सब बात, तो उसके बारे में लिखना है। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ। और गुरु ने कैसे अपने डिसाइपल की लाइफ को बचाया, सिक्स क्वेश्चन वो है। तो ये 6 क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने, नॉर्मली जैसे हम करते हैं, ठीक है, ये कंप्लीट करके आपको भेजना है। नाउ सैटरडे, जैसे आज ये वीडियो आपके पास आया है, तो सैटरडे से ये वीडियो आपके पास आया है, आपके पास टाइम है आज कंप्लीट करने का। आप जो है आप क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर सकते हैं, आपको टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है, राइट। संडे को आपका पेपर है, मंडे को भी आप सबमिट कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर को। संडे का फुल डे होगा, आफ्टर 9 o'clock आपके पास टाइम होगा, आप इसके क्वेश्चन आंसर करिए। मंडे को भी आप सबमिट कर सकते हैं, मगर संडे को क्वेश्चन टेस्ट देना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, संडे को टेस्ट होगा आपका चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। देयर विल बी 5 क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स का होगा। आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा 8 o'clock से पहले आपको वो मिल जाएगा। आप लोगों को वो डाउनलोड करना है पहले, और फिर उसके बाद आपको जैसे आप नोटबुक में आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी नोटबुक में, हमारे इंग्लिश के नोटबुक में एक पेज लेके मतलब नोटबुक का पेज लीजिए, उसके ऊपर लिखिए, उस नोटबुक के अंदर ही आप करिए और उसकी फोटो खींचिए। हर पेज पे अपना नाम, रोल नंबर, और रोल नंबर तो नहीं मगर नेम, क्लास, सब्जेक्ट लिखिए और उसको एक PDF बनाइए, फोटो खींचिए और उसको क्वेरी ग्रुप में डालिए, ठीक है। तो ये आपको करना है 9 o'clock, 8 AM to 9 AM के बीच में, 1 घंटे का ब्रैकेट है आपके पास, इसके अंदर आपको करना है और आपको सेंड करना है। तो अभी से ही पढ़ना चालू कर दीजिए और जितना भी है आप लोगों को समझ में आ जाएगा बाकी चीजें, ठीक है। सो देयर विल बी अ टेस्ट, बी रेडी फॉर द टेस्ट।
डू गुड, ठीक है, अच्छा करना है, आपके मार्क्स जुड़ेंगे इंटरव्यू में, ठीक है। सो for today's video, this is what we are going to do. So be happy, stay at home, get ready for the test, also do the homework what we have given. Those students are not studying, please study, otherwise आपके मार्क्स कट रहे हैं। जो दोस्त अपने दोस्तों को बता सकते हैं, जो लोग नहीं देख रहे हैं, जो लोग होमवर्क नहीं देख रहे हैं, आप भी बोल सकते हैं उनको करके भेजने के लिए, ठीक है। तो ऐसा भी करें आप एंड डू द प्रॉपर वर्क, ठीक है। टिल देन, टिल द नेक्स्ट वीडियो, we'll come back and we'll go to the next chapter, right? So till then, bye bye, thank you.